ये कौन है यार? रिलैक्स रिलैक्स प्लीज, कर रहे हैं स्टार्ट, रिलैक्स। ओके, everything is fine now. See, so what we have done in the last class, what we have covered. Okay, 1 minute. Yeah. Okay, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Python VWalk. Okay. So in last class we have seen how to download and install Python, how to check the version, how to configure the path. These are all the things we have seen. Any doubt from your side in downloading and installation? Most of the student has sent the screenshot to me that they have downloaded, they have installed also. Anybody have any problem? Can you please confirm? In downloading and installation part is over, because this is very important part. Yes, Kashif, good afternoon. ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं कुछ, उसको भी बताना है, ठीक है, कि आपने पाइथन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि मेरे साथ आपकी भी प्रैक्टिस होनी है। आज का एजेंडा क्या है, क्या क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे? 1 सेकेंड, लेट मी टेक द VWalk पाइथन फोल्डर। ओके, नाउ notes, agenda of the lectures in the Python. My introduction part is still not over. हमने 7 पेज का इंट्रोडक्शन बनाया है, तो अभी वो चल रहा है। डिफरेंस बिटवीन द पाइथन एंड सी, हम लोगों ने जस्ट अभी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, तो उसके कोलैबोरेशन में हमें पाइथन को देखना है, उसके कंपैरिजन में। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम देखेंगे आज। डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड, ये क्या होता है वो भी अभी हम देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद आई विल कवर ऑल दिस पॉइंट्स। जस्ट 1 सेकेंड। तो वेयर इज माय इंट्रोडक्शन शीट, ये था। फाइन, तो इंट्रोडक्शन में यस्टरडे हम बात कर रहे थे आईओटी के बारे में। तो आईओटी क्या है हम उसको थोड़ा सा डिटेल में आज देखेंगे, थोड़ा डिटेल में। 1 मिनट, लुक एट दिस। With the help of IoT, Internet of Things, we can control most of the things like electronic appliances. We can check the atmospheric temperature, बाहर का टेम्परेचर क्या है वो भी हम चेक कर सकते हैं। Humidity, fuel of the car, IoT के थ्रू। Locking and unlocking of the doors, कार का डोर लॉक है या नहीं, हमारे अपने होम के लॉक हैं डोर के नहीं, वो सब चीजें हम चेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चिप, एंड द चिप विल बी इंटरैक्ट विद द प्रोग्राम ऑफ पाइथन दैट कैन बी डाउनलोडेड इन योर मोबाइल और इन योर लैपटॉप। बिफोर एंटरिंग इनटू द रूम, AC शुड बी ऑन एंड सेट ऑन एडिकेट टेम्परेचर। ये सारी चीजें IoT के थ्रू पॉसिबल है। ओके, constant, this is a very important example, constant monitoring of the patient. So when the patient comes in the serious condition, immediately the hospital will get the information according to the monitor system. एक monitor system हम लोग patient के साथ integrate कर देते हैं, तो इससे हमें पेशेंट्स की कंडीशंस पता चलती रहती हैं कि वो किस स्टेट में जा रहा है। अगर वो क्रिटिकल स्टेट में जाता है, सीरियस कंडीशन में, देन हॉस्पिटल विल बी immediately came to know that the patient is in critical state and the ambulance will be released without any contact by the patient. अगर हमारा पेशेंट से कांटेक्ट नहीं भी हो रहा है तब भी एम्बुलेंस वहां से रिलीज हो जाएगी, and the patient will be immediately come to the hospital, and before reaching the patient into the hospital, everything will be ready like medicine, emergency treatment, so that without delay the treatment will be provided.
इस फील्ड में भी हम लोग पाइथन को एज ए प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं. ओके, so with the help of these things it will be easy for us to handle this kind of situations. Okay. Now इसके बाद हम बात करते हैं any type of application can be developed using the Python. Number one, desktop application can be developed. What are the desktop applications? Desktop applications मतलब आपका MS Office is one of the example of desktop application. Photoshop, PageMaker, CorelDRAW, all the drivers are the desktop applications. Operating system is a desktop application. Okay. ये सब हम डेवलप कर सकते हैं पाइथन से. After that, web-based application can also be developed. Web-based application भी हम डेवलप कर सकते हैं like Flipkart, Amazon, okay, Facebook, Instagram. ये सारी चीजें वेब-बेस्ड एप्लीकेशन के अंडर में आती हैं. दिस एप्लीकेशन वी कैन डेवलप, नो प्रॉब्लम. वेब-बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए देयर आर डिफरेंट फ्रेमवर्क इनसाइड पाइथन लाइक फ्लास्क, Django. With the help of Django and Flask, we can develop the web-based application. मतलब मैं कंप्लीटनेस के बारे में बता रहा हूँ कि क्या कंप्लीटनेस है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, AI, ये भी डेवलपमेंट हो सकता है पाइथन के हेल्प से. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कंपाइलेशन प्रोसेस वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास. तो अभी दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वही सब है. पाइथन वर्चुअल मशीन, PVM मैं आपको दूंगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कंपैरिजन करें तो पाइथन प्रोवाइड द कंसाइज कोड. कंसाइज कोड मतलब इसके सिंटैक्सेस और कोड काफी छोटे होते हैं. ओके, पाइथन प्रोवाइड्स रिच लाइब्रेरीज फॉर अ डिफरेंट पर्पस लाइक डेटाबेस कनेक्टिविटी. डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज पाइथन में हैं जिससे हम जल्दी डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लेते हैं पाइथन. सारे रेडीमेड कोड्स आर अवेलेबल, मतलब बने बनाए कोड्स हैं, बस उनको हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज करना होता है विद स्मार्ट लॉजिक. ओके, इन अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वी कैन नॉट राइट एनी प्रोग्राम विदाउट डिक्लेयरिंग द क्लास. जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं लाइक जावा, एक मिनट, ठीक है, लेक्चर स्टार्टेड, 1 मिनट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं. लेक्चर स्टार्टेड, ठीक है. अगर हम बात करें जावा की या C# की, ठीक है, दैट मेक्स द डिफरेंस. तो जावा की अगर हम बात करें, जिन्हें किसी ने पढ़ी है या किसी ने नहीं पढ़ी, या हम C# की बात करें, ओके, ये दोनों हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ऑलराइट, तो इसमें बिना क्लास के हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ क्लास, देन वी कैन स्टार्ट द प्रोग्रामिंग. चाहे वो जावा हो या C#, द क्लास इज मस्ट, क्लास शुड बी देयर. ओके, विदाउट क्लास वी कैन नॉट स्टार्ट प्रोग्रामिंग. बट अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. अगर हम क्लास बनाते हैं तो भी ठीक, नहीं बनाते हैं तो भी ठीक. तो विदाउट क्लास और विद क्लास वी कैन स्टार्ट द प्रोग्रामिंग. जब कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता है प्रोग्रामिंग तो उसे क्लास के बारे में आइडिया नहीं होता, तो विदाउट क्लास ही और शी कैन स्टार्ट द प्रोग्रामिंग इन पाइथन. ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एनी डाउट? ठीक, सब इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है और पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, इसलिए हम ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं. ओके, प्रैक्टिकल आज ही हम स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ा सा ये पार्ट क्लियर हो जाए. ओके, आफ्टर दैट ये पॉइंट, इट इज फ्रीवेयर ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फ्रीवेयर ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? इसको डाउनलोड करके यूज करने में, इंस्टॉल करने में हमें कोई पेमेंट नहीं देना है. इट्स फ्रीवेयर ओपन सोर्स, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फ्रीवेयर है. डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम. पॉइंट नंबर 1, ऑटोमेटिक पाथ इज सेट इन द पाइथन एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन. हमने देखा, ठीक है. अब
एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे, अदर लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प आर स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, बट पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर हम सी शार्प या सी की लैंग्वेज की बात करें, सी की जो हमने अभी पढ़ी थी, सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, एक मिनट, टर्बो, थोड़ी देर के लिए हम ओपन कर रहे हैं सी को, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सी लैंग्वेज एंड पाइथन। ठीक है, 1 सेकेंड। हम लोगों ने सी लैंग्वेज को ओपन किया, टर्बो, यहां पर हमने न्यू लिया, ओके ठीक। अगर हमें सी के अंदर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट स्टार्ट कर दें, कुछ चीजें हैं जो हमें इंक्लूड करनी होंगी। नंबर 1, वी हैव टू इंक्लूड बेसिक हेडर फाइल, ओके। उसके बाद वी हैव टू क्रिएट अ मेन फंक्शन, because main function is the first execution point. Without main we cannot start programming. Then printf, hello students, how are you? रिजल्ट को रोकने के लिए स्क्रीन पर get ch यूज करना। तो how many lines we have to write? Number 1, number 2, number 3, number 4 and bracket also. तब जा करके एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। ओके, गेट ch यूज करा तो उसके लिए भी एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी। इंक्लूड ponyo.h, कंपैरिजन चल रहा है सी से पाइथन का, कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटिंग। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू इज कमिंग। अगर आपको स्क्रीन क्लियर करनी है तो उसके लिए CLR SCR है, ये था। तो हाउ मेनी लाइंस वी हैव टू राइट? 5-6 लाइन हमें लिखनी पड़ेंगी, तब जाकर हमारा यस हाँ, वी कैन सी दैट कि सिंटैक्स को बहुत ही सिंपल रखा गया है ताकि हर आदमी इसको पढ़ ले, समझ ले। ठीक है, अब हमें यही काम अगर पाइथन में करना है, सिर्फ यही काम जो हमने यहाँ पर किया, ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर रहे हैं। तो पाइथन में कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए, आपको पाइथन में इंटर होना पड़ता है। तो हाउ टू इंटर इन द पाइथन? जस्ट अ मोमेंट। तो अगर आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है, आपके सिस्टम्स में, तो आपको क्या करना है? हाउ टू स्टार्ट द पाइथन? आप रन में जाएंगे और वहां पर, सर्च में जाएंगे और वहां पर आपको टाइप करना है IDLE। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब आई वांट टू डू सम प्रोग्रामिंग इन द पाइथन, सो प्लीज स्टार्ट। काशिफ प्लीज, क्या चला दिया यार इसने। यार ठीक है काशिफ, कर रहे हैं। एक्चुअली सारी स्क्रीन हमारी ऑफ थी ना, तो उसके बाद मैं सारी स्क्रीन ऑफ इसलिए करता हूं ताकि मुझे लिखने का स्पेस मिले, क्योंकि एज ए एडमिन बहुत सारी स्क्रीन इधर वाल ओपन होती हैं। अब मैं इसको देखता हूं, हाँ कौन था ये? काशिफ। इसको मैंने म्यूट किया और साथ में किसको मैसेज भी डालता हूं। क्या कर रहे थे तुम? व्हाट आर यू डूइंग? नहीं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू?
What are you? Ooh. ठीक है, सही है. That's fine. Okay, now, so whenever we want to do the work in the ideally, oh sorry, Python में अगर हमें कोई काम करना है तो हमें सबसे पहले ideally सर्च करना है. आइडियली वो इन्वायरमेंट है जिसमें हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं. ठीक है, पाइथन में कोड्स लिखते हैं. अब आइडियली में दो चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. देयर आर टू मोड्स इन द integrated development learning environment. Integrated development learning environment, someone is asking the full form. There are two modes in the IDLE. Number one, very important question, IN, interactive mode. Number two, script mode. My voice is not coming. 1 minute, भैया. Okay, that's fine. उसको म्यूट करने के साथ साथ हमने अपने को भी म्यूट कर लिया था. बाय मिस्टेक मैंने अपने आप को भी म्यूट कर लिया. काशिफ को म्यूट किया फिर मैं. ठीक है, ओके. इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड. ठीक है, इंटरैक्टिव मोड इट इज नॉट फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस. ये प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए नहीं है. इसका पर्पस है कुछ कमांड्स को टेस्ट करना, कुछ फंक्शंस को टेस्ट करना, कुछ मॉड्यूल को टेस्ट करना. ठीक है, फॉर टेस्टिंग सम फंक्शंस, मॉड्यूल्स एंड एक्सप्रेशंस, बट नॉट फॉर इसको अभी तो म्यूट किया था, फिर आ गया यार ये. Okay, it is not for programming purpose, for testing some functions, module and expression, but not for coding. कोडिंग के लिए ये यूज नहीं होता इंटरैक्टिव मोड. ठीक है, अब हम इंटरैक्टिव मोड को रिकॉग्नाइज्ड कैसे करेंगे? हाउ टू रिकॉग्नाइज इट? ठीक है, ट्रिपल ग्रेटर साइन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरैक्टिव मोड. प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं. ठीक है, ओके फाइन. तो सर्च में गए, हियर आई एम टाइपिंग आइडियली. आपको रोज काम करना है तो जस्ट राइट क्लिक एंड पिन टू स्टार्ट. तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली यू कैन गो टू द स्टार्ट. यहां पर देखो ये आइडियली आ रहा है पाइथन. ओके, हमने स्टार्ट करा, ये आ गया हमारा आइडियली. ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं ट्रिपल ग्रेटर साइन के साथ, ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है. सॉरी, ये हमारा इंटरैक्टिव मोड है. इसको हम लोग शेल भी कहते हैं. शेल, ये हमारा इंटरैक्टिव मोड है. यहां पर प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, यहां पर हम कमांड्स को टेस्ट करते हैं. ठीक है, सपोज आई वांट टू प्रिंट एनी स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन, तो हमें कोई फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, कोई वाइड मेन की जरूरत नहीं है, कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं. बस सिंपल लिखो प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू. क्लियर? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अंडरस्टैंड? ठीक है, सपोज आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट 5 times, 10 times, 20 times.
यही स्टेटमेंट 20 टाइम्स। काशिफ अपने आप मीटिंग लेफ्ट कर गया, ठीक है, अच्छा गुड। तो हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, तो क्या है कि अगर इसी स्टेटमेंट को हमको 5 टाइम 10 टाइम 15 टाइम प्रिंट करना है तो अदर लैंग्वेजेस में लूपिंग यूज होती है, बट यहां पर हमने लिखा हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू एंड मल्टीप्लाइड 10। मल्टीप्लाइड 10 मतलब दिस स्टेटमेंट प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग दिस स्टेटमेंट प्लीज प्रिंट 10 टाइम, नो प्रॉब्लम, no problem. Do you understand? Okay, 1 minute. Hello students, मैं चाहता हूं वर्टिकली 20 टाइम्स, वर्टिकली 10 टाइम, तो \n is used to break the line and 20 टाइम, no problem. Understand? Can you please confirm? Okay, no problem. 20 times the statement is printing without loop. अच्छा, अब यहां पर एक चीज और बताते हैं, प्रिंट के साथ स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं ना, हेलो हाउ आर यू इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। स्ट्रिंग कैन बी represented by single inverted commas as well as double inverted commas। देखो ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, लेक्चर कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है। 15 दिन के बाद कोई स्टूडेंट ज्वाइन करेगा, सर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पाइथन, सर क्या पढ़ा, ये देखो यहां से चल रहे हैं हम, यहां से चल रहे हैं और डेटाबेस कनेक्टिविटी पे स्टॉप होंगे। जो डेटा विल बी स्टोर इन डेटाबेस, फाइल हैंडलिंग, लैम्डा एक्सप्रेशन, एनोनिमस फंक्शन सब आएगा, बट स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, प्रिंट हेलो हाउ आर यू। तो एवरीथिंग शुड बी गुड टू लर्न फ्रॉम स्टार्टिंग। स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल इन्वर्टेड कॉमास एज वेल एज डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, दोनों तरीके से आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक एंड डायनेमिक, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं, ध्यान से देखना यहां पर, ओके। किसी भी वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए क्या हम यूज कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल विदाउट डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल? वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड जब स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं। नहीं, गुड उत्तम, नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज सी लैंग्वेज, मैं लैंग्वेजेस के नाम ले रहा हूं, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, हाँ ठीक है, वेरी गुड अदनान। सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा, C#, मैंने 4 लैंग्वेज के नाम लिए। These 4 languages are statically typed programming language. I'm word using statically typed. Statically typed का मतलब होता है without declaring any variable with appropriate data type, you cannot use it. आप यूज नहीं कर सकते because they are statically typed. Let me compile. Compilation phase आप क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, undefined. But Python is a dynamically typed programming language. What do you mean by a dynamically typed programming language? बिना वेरिएबल को डिक्लेयर किए आप यूज कर सकते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिकली टाइप्ड एंड डायनेमिक। पूरी मेहनत के साथ हम लेक्चर्स ले रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। ओके, लेट मी टेक अ फ्रेश आइडियली फ्रेश पेज। अब देखो n is equal to 12. Sir, is it possible? Yes, it is possible. X is equal to 12.56. Is it possible? Yes, it is possible. Sir, how can you say that? क्या n में 12 स्टोर हो चुका है? Yes. आप प्रिंट करके चेक कर लो 12, आप प्रिंट करके चेक कर लो, वेरी बेसिक, बिल्कुल बिगनिंग से चल रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक
This is called dynamic initialization. Okay, dynamic. Statically typed programming language, this is dynamically typed programming language. Do you understand? Okay. Do you understand? Okay. अब देखो एक चीज और, बहुत ध्यान से देखना. सेकंड पावर. अच्छा, अब बताओ. What do you mean by this? X is an integer type, correct? X is a integer type. तो X में ये भी स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Is it okay? No, sir. Is it okay? Why? Sir, what you are doing, sir, you have defined the X as integer type. Then you can only store integer value. How can you store the string value? Very good, Mike. तो अभी क्या है कि कंपाइल करते हैं, एरर्स दिया, नो प्रॉब्लम. अब देखो यहां पे पाइथन में क्या होता है, अगर हमने n लिखा, n एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल वेरिएंट टाइप का है. वेरिएंट टाइप, वेरिएंट टाइप का मतलब होता है इसका कोई डेटा टाइप नहीं है. जो वैल्यू आप इसमें स्टोर करेंगे वैसा इसका टाइप हो जाएगा. इट विल टेक द टाइप, इट विल क्रिएट हिज टाइप अकॉर्डिंग टू द वैल्यू स्टोर्ड. हमने n में 124 स्टोर किया, n में 124 स्टोर करा. अब ये किस टाइप का हो गया होगा? अब ये किस टाइप का हो गया होगा? इंटीजर टाइप का. सर हाउ कैन यू से दैट? भाई आपके कहने से थोड़ी हम बिलीव कर लेंगे. देयर शुड बी सम मेथड टू चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल. वन मिनट, आई एम कमिंग टू दैट. आई एम कमिंग टू दैट. यस, वेरी गुड उत्तम. एंड मरियम इज ऑल्सो रिप्लाइंग, वेरी गुड. सी, यहां पर हमारा आपका थियोरिटिकल सेक्शन चल रहा है. ये हमने इंटरेक्टिव मोड आपको बता दिया, ठीक है, ध्यान से देखिए. What are the built-in functions of Python? Number one, print हमने यूज किया. It is used to display anything on the screen. अब थोड़ा ओरली बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा. Type. This function is used to check the current type of any variable. Understand? Any variable, किसी भी वेरिएबल का अगर आपको टाइप कभी चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इवन प्रोफेशनल्स आर यूज फ्रिक्वेंटली. इसके बाद कौन सा है? आईडी. दिस फंक्शन इज यूज्ड टू print the memory address of any variable. मेमोरी में कहां पर, किस जगह पर ये स्टोर हुआ है. जैसे मैंने कहा अदनान, तो अदनान का एड्रेस क्या है? आई नो द एड्रेस ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, कि वो कहां रहता है, वो उसका एड्रेस होता है, जो कि हमने सी में एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू किया था. होप यू रिमेंबर दैट. होप यू रिमेंबर दैट. हाँ, करेक्ट. अब देखो वापस आ जाते हैं. तो दिस इज, आई वांट टू चेक द करंट टाइप ऑफ द n. तो टाइप n, int. अंडरस्टैंड? यानी कि इस टाइम पर n का टाइप है सर वाई ए क्लास. इफ एनी लैंग्वेज इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हर चीज क्लास के फॉर्म में होती है. इवन डेटा टाइप आर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्लास. अंडरस्टैंड? सब कुछ यहां पर क्लास के फॉर्म में है. अच्छा सर, क्या n में हम कोई और वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है.
n में अभी था 124, तो n int टाइप का था। अब हमने n में स्टोर कर लिया इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज अ स्ट्रिंग, इंफॉर्मेशन इज अ स्ट्रिंग, ये उसने एक्सेप्ट कर लिया। अंडरस्टैंड, उसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अब यही n आपका स्ट्रिंग टाइप बन गया, और इसका टाइप क्या हो जाएगा, str। str is a data type in the Python, consider as a string। 1 minute sir, can you please check the type? Yes, str, no problem, no problem। n is equal to 12.67, type n, float type। at the any moment of time आप अपने वेरिएबल के टाइप को अकॉर्डिंग टू द डेटा चेंज कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। n is equal to true, n is equal to true, type of n bool, bool means boolean, bool means boolean, understand? So these are all the very important data types of fundamental data types of the Python। okay, यहां पर डबल नहीं है, यहां पर डबल नहीं है, ठीक है, यहां पर सिर्फ फ्लोट है, और फ्लोट इतना ज्यादा एफिशिएंट डेटा टाइप है, वो हर तरह की वैल्यू को हैंडल कर लेता। आर यू गेटिंग माय वॉइस? am I audible to all of you? Can you please confirm? Okay, some students are saying, actually that's why I'm confirming। okay, see, अब क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। अब क्या करेंगे हम लोग? यहां से देखो, यहां से देखो। अच्छा sir, is it possible? Is it possible? Is it possible? Very good, it is possible। सब कुछ इंटीजर, अभी बता रहे हैं, आई एम कमिंग टू दैट, रुक जाओ। माइक एक मिनट, बताओ ये पॉसिबल है? अच्छा, ये पॉसिबल है? तुम ही लोग तो कह रहे हो सर है। अच्छा, और थोड़ा और इजी करते हैं, और इजी करते हैं, ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? अच्छा, कौन से डेटा टाइप में पॉसिबल है ये बता दो। तुम पूरा सी पढ़कर आए हो, उसमें बता दो कौन से डेटा टाइप में पॉसिबल है। न्यूमेरिक वैल्यू इतनी बड़ी स्टोर करनी है, कौन से डेटा टाइप में पॉसिबल है? लॉन्ग में इतना बड़ा नंबर पॉसिबल है? नो, किसी भी डेटा टाइप में इतना बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है। और ले लेते हैं थोड़ा, तुम भी क्या यार सोचोगे, और बढ़ा लो। नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल सर, इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ कम टू द पाइथन, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट्स आप लोग लेते रहिए, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। आई एम ऑल्सो टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स। तो यार इतने ज़्यादा ग्रुप हो गए हैं, हमें भूल जाते हैं कौन से ग्रुप में। कभी C# की कोडिंग चली जाती है MVC में, कभी MVC कोडिंग चली जाती है C# वाले बैच में। ये तो ठीक है ना? ठीक है, ओके। अब रुको, यहाँ पर एक बार हम फ्रेश स्क्रीन ले लेते हैं। आइडियली कंपैरिजन चल रहा है, सिर्फ कंपैरिजन चल रहा है, comparison। See, now let me clear all this screen। Okay, fine। n is equal to, my dear student, don't worry, all right। इतना इससे लिख रहे हैं क्योंकि स्क्रीन के अंदर आ जाए, वरना जा तो आप और भी आगे सकते हैं। सर क्या ये एक्सेप्ट कर लेगा? इंटर, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। सर हाउ कैन यू से दैट इट इज एक्सेप्टेड? क्योंकि अगर कोई एरर नहीं आ रही है, दैट मींस इट इज एक्सेप्टेड। सर कैन यू प्लीज प्रिंट? यस, ऑल राइट, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब
क्या हम इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं? ठीक, लास्ट डिजिट देखो क्या है, इंट 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 टाइप है। तुमको थ्योरी में बताया था बिग डेटा, बताया था ना? व्हाट डू यू मीन बाय बिग डेटा? अगर अमेजॉन के डेटा की बात करें, फ्लिपकार्ट के या फेसबुक के, तो कितना ह्यूज डेटा होगा, पूरे वर्ल्ड के यूजर्स हैंडल होते हैं। तो बिग डेटा के लिए पाइथन इज अ रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माय डियर स्टूडेंट। लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? 8। अच्छा, अब बताओ कि क्या हम इस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए? कंफर्म करने के लिए क्या ऐसे ही स्टोर हो गया या कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म हो सकता है? n इज इक्वल टू n+1, आंसर क्या आएगा? लास्ट में 9 आ जाएगा बस। इसका मतलब है कि डेटा ही स्टोर नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन भी स्टोर हो रहे हैं, कैलकुलेशन भी स्टोर हो रहे हैं। नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड? इसमें कोई बाइट का इशू नहीं है मुस्कान, बस, ठीक है महक, ठीक है, हम बताएंगे अभी, ठीक है। एज मच एज यू कैन स्टोर द डेटा, नो प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है। यहाँ पर बिट्स एंड बाइट्स की बाउंडेड कैपेसिटी नहीं है, बिट्स एंड बाइट्स की बाउंडेड कैपेसिटी नहीं है, इट्स अ फुल एक्सपेंशन ऑफ द डेटा, ठीक है, ओके। तो अभी क्या है, इतनी बात आपने समझी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। सी, ओके, यहां पर गार्बेज वैल्यू आ जाएगी अगर हम प्रिंट करें। 1 मिनट, 1 मिनट, व्हाट इज दिस? ये क्या है लास्ट में? ये दिस इज कॉल्ड सेमीकोलन। सेमीकोलन इज अ टर्मिनेटर इन द सी लैंग्वेज, ठीक है। तो अब हम एक काम और करते हैं। सी, यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ अभी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। हम लोगों ने ये पार्ट कवर किया है, सिर्फ ये पार्ट कवर किया है। C and C++, C# are a statically typed programming language, you understand. And Python is a dynamically typed programming language. Without declaring the variable, we can use it. Python came from the famous BBC TV show Monty Python Circus. ये आपको मैंने कल बताया था। लेटेस्ट वर्जन क्या है पाइथन का? 3 मई 2021 को लॉन्च हुआ था, 3 मई 2021, यानी कि अगर बात करें तो इसी महीने की बात हो रही है, ठीक है, मई चल रहा है ना, हाँ, इसी महीने के 3 तारीख को ये वर्जन लॉन्च हुआ था जिसको आप पढ़ रहे हैं। कल को आपसे कोई पूछ ले कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो भैया, 3.9.5 पे काम कर रहे हैं इस टाइम हम पाइथन, जो कि 3 मई को लॉन्च हुआ। डू वाइल लूप इज नॉट प्रेजेंट इन द पाइथन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डू वाइल लूप पाइथन के अंदर यूज नहीं होता, बाकी सारी प्रोग्रामिंग में ऑलमोस्ट यूज होता है, ठीक है, ओके। इसमें दूसरे लूप्स हैं, बताएंगे। हाँ, एक चीज और, एरे में आप लोगों ने पॉजिटिव इंडेक्सेस देखे थे, यानी 0 से 1 जा सकते हैं, 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, एरे की बात कर रहे हैं सी में। लेकिन आप बैकवर्ड नहीं आ सकते, लेकिन यहां पर आप बैकवर्ड भी आ सकते हैं, मतलब निगेटिव इंडेक्सेस भी हैं, पॉजिटिव इंडेक्सेस भी हैं, ओके। हमने ऑक्सफोर्ड को 5 टाइम प्रिंट कर लिया, ये मॉन्टी पाइथन सर्कल है, ये आदमी के सर पर लोग बैठे हैं, ठीक है, ये था। अब नीचे आते हैं, दिस इज द मोस्ट स्मार्ट पर्सन, ठीक है, हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ग्यूडो वैन रॉसम है, जिन्हीं ने पाइथन को डेवलप किया, ओके फाइन। स्टेटमेंट टर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हम आपको जब चाहें तब प्रोग्रामिंग पे ला सकते हैं, इंटेंशनली अभी नहीं ला रहे हैं, ठीक है, इंटेंशनली अभी हम बेस और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेशन, पाइथन डज नॉट यूज एनी सिंबल टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप लोग सेमीकोलन देते थे तब जाके आपका स्टेटमेंट टर्मिनेट होता था, याद है ना? पाइथन में ऐसा कोई टर्मिनेशन कैरेक्टर नहीं है। आप जैसे ही इंटर करेंगे, पाइथन कंपाइलर ये समझ लेगा कि योर सेंटेंस इज कंप्लीटेड। कैन यू प्लीज कंफर्म? व्हेन यू एंड अ फिजिकल कोड लाइन बाय इंटर की, द स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टर्मिनेटेड बाय डिफॉल्ट। ऑल राइट,
All right. Point number 12 is clear to all of you? Okay. मैक्सिमम लाइन लेंथ 79 कैरेक्टर आप एक लाइन में लिख सकते हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। टोटल लेंथ होती है 80 कैरेक्टर्स, 79 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद आपका कैरेक्टर इमीडिएटली सेकेंड लाइन में आ जाए। लाइन्स एंड इंडेंटेशंस, लाइन्स एंड इंडेंटेशंस। एक मिनट, यहां पर देखो, वापस हम सी लैंग्वेज में आ गए। थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल्स भी चल रहे हैं हमारे, थोड़े थोड़े प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल्स भी चल रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा हमारा थियोरेटिकल भी चल रहा है, कॉन्सेप्ट बेसिस पे हमारा काम चल रहा है। ठीक, बहुत ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू 2, x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, printf the number is percentage d comma x and we use the backslash n and the number is even. Okay. अंडरस्टैंड? यहां पर ये देखो कि ये ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट क्या है और इसे क्यों यूज करते हैं। रिप्लाई, ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट क्या है और इसे क्यों यूज करते हैं। टेल मी, क्या यूज है इसका? ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो, इसको हम इसलिए यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर मेकिंग द ब्लॉक्स। कॉपी पे लिखते जाओ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट इज यूज फॉर मेकिंग द ब्लॉक्स। इसका मतलब है कि इफ के अंदर, इनसाइड इफ, two statements are there and these two statements are enclosing with open bracket and closing bracket. यहां भी तो यूज किया था वाइड मेन के बाद। देखो, वाइड मेन के बाद ये ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब इन ब्रैकेट्स के बीच में जो कुछ आएगा वो वाइड मेन के अंदर कंसिडर आउट होगा। कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? तो ब्लॉक बनाने के लिए यूज किया जाता है। जितने स्टेटमेंट इस ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे वो स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर कंडीशन या उस पर्टिकुलर फंक्शन का पार्ट है। वेरी गुड हर्षिता, ठीक है। अब क्या करेंगे? अगर ये ब्रैकेट ना लगाए जाएं तो फिर ये पता नहीं चल पाएगा कि कितने स्टेटमेंट आप इसके अंदर रखना चाहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कर्ली ब्रेसेस ब्लॉकिंग। पाइथन में कर्ली ब्रेसेस का कोई प्रोविजन नहीं है। फिर क्या है सर? इंडेंटेशन है। क्या है? इंडेंटेशन। सर ये इंडेंटेशन क्या है? मैं बताता हूं इंडेंटेशन क्या है। ठीक, सी, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, बहुत आराम से देखो। सर इफ x मॉडुलस 2 बराबर 0, ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट इफ कंडीशन के अंदर है। सर अब अगर यही पाइथन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पाइथन में आप x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 लिख करके कर्सर को थोड़ा एक टैब आगे ले लेंगे। अंडरस्टैंड? अब जो चीज आप यहां पे लिखेंगे वो चीज आपकी इफ के अंदर मानी जाएगी, और जैसे ही आप ये टैब पीछे ले लेंगे तो इसका मतलब आप इफ से बाहर हो गए। वापस टैब के अंदर आ गए, इसका मतलब आप इफ के अंदर हैं। वापस आपने बैक स्पेस दे दिया, इसका मतलब आप इफ के बाहर हो गए। कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? अच्छा, अब ये बताओ, बहुत आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से बताओ। कौन सा पेमेंट हो चुका है? पेमेंट हो चुका है।
बहुत ध्यान से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट खेल रहे हैं। बताओ कौन सा स्टेटमेंट किसके अंडर में है? कौन सा स्टेटमेंट किसके अंडर में है? स्टेटमेंट 1 2 3 किसके अंडर में है? स्टेटमेंट 4 और 5? स्टेटमेंट 4 और 5 इफ से बाहर हैं, इफ से बाहर हैं, इफ से बाहर हैं, अंडरस्टैंड? इफ से बाहर हैं, कंडीशन ट्रू होने पे भी एग्जीक्यूट होंगे, कंडीशन फॉल्स होने पे भी एग्जीक्यूट होंगे। व्हाट अबाउट 5 एंड 6? एल्स के अंदर हैं। व्हाट अबाउट 7? इफ के भी बाहर हैं, एल्स के भी बाहर हैं। दोनों से बाहर हैं। हाँ, कॉमन स्टेटमेंट। कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन in other programming languages we use braces, but in Python we use indentation. Indentation function में भी indentation, if में भी indentation, for में भी indentation, सब जगह indentation होगा। और indentation की प्रैक्टिस हम बहुत अच्छी कराएंगे, डोंट वरी। सर आपने एक फंक्शन अभी मिस कर दिया, id, ठीक है, id भी चेक कर लेते हैं। See, A is equal to 12, B is equal to 12.67, C is equal to string. Clear? ID of A, ID of B, and ID of C. ये जो तीनों लिख कर आए हैं, this is called memory address. मतलब इन एड्रेसेस पे आपका A स्टोर है, इस एड्रेस पे आपका बी स्टोर है, इस एड्रेस पे आपका सी स्टोर है। कहीं पर आपको अगर मेमोरी एड्रेस से रिलेटेड कोई टास्क करना हो या पता करनी हो तो यू कैन इजीली नो दैट। कभी कभी क्या होता है, जब हम एक बहुत ही हाई रेंज के डेटा पे काम करते हैं तो कभी कभी हमारा डेटा मेमोरी में स्टोर नहीं हो पाता, क्योंकि मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं होता। तो हम इस आईडी की हेल्प से देख लेते हैं कि क्या इसको कोई एड्रेस एलोकेट हुआ या नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो डेट मीन्स मेमोरी में स्पेस ही नहीं है। लखनऊ के अंदर आपको कोई भी जगह रहने के लिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि लखनऊ में स्पेस अवेलेबल नहीं है, अंडरस्टैंड? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, सब बता दिया हमने आपको, ठीक है। अच्छा, ये बात हमारी क्लियर होगी। लेट्स मूव टू अकॉर्डिंग टू द एजेंडा। आज का क्या था हमारा, देखें कितना कवर करा हमने। टर्मिनेशन चल रहा है, बाकी वाइट स्पेसेस के लिए 6 है, स्पेस है, बैकस्लैश n है, हॉरिजॉन्टल टैब है, वर्टिकल टैब है, फॉर्म फीड है, कैरेज रिटर्न, इनको बहुत कम यूज करते हैं, स्ट्रिंग में बताएंगे। लिमिटेशन ऑफ द पाइथन, इतनी देर से हम लोग पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, थोड़ी सी लिमिटेशन के बारे में भी बात कर लें। ड्यू टू इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम द परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू समवेयर इट इज स्लो, यानी कि जब आपके बाइट कोड्स मशीन कोड में कन्वर्ट होते हैं तो वहां पर हम लोग इंटरप्रेटर का यूज करते थे, तो वहां पर जाकर के थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से सी के कंपैरिजन में ये लैंग्वेज एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी स्लो है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस स्मॉलर डिसएडवांटेजेस इट इज वेरी यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज नॉट बेटर फॉर द लैंग्वेज ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, मैंने कल ही बताया था कि इट इज नॉट नॉमिनेटेड फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए इस लैंग्वेज का यूज हम नहीं करते। नो सुटेबल फॉर द लार्ज इंटरप्राइज एप्लीकेशन लेवल्स, बहुत ही जहां पर बहुत हाई सिक्योरिटीज की जरूरत हो एंटरप्राइज लेवल पर, वहां पर हम पाइथन को प्रेफर नहीं करते। वहां पर जावा, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET MVC ये यूज होते हैं। इसके अपने अलग एरियाज हैं, उनके अपने अलग एरियाज, ठीक है, ओके। इसके बाद एक मिनट, ये मैंने आपको बता दिया। ये क्या है, ऐसा टाइप ऑफ पाइथन, ये बताएंगे अभी आपको, थोड़ा रुक कर।
कुछ चीजें डिपेंडेंसीज हैं आगे के चैप्टर से। 1991 और 1996 ये हमने कंपैरिजन लिख दिया था। पाइथन फीचर्स 1 मिनट में बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम टॉप कंपनीज, हाँ ये थोड़ा सा देख लेते हैं। नासा, गूगल, स्टॉक एक्सचेंज, यूट्यूब, ये सब आपकी यूज कर रही हैं पाइथन को प्रॉपरली। 1 मिनट, थ्योरी तो हम आपको दे देंगे तब भी आप पढ़ लेंगे। ओके 1 मिनट। अभी सी, ठीक है, ये सब चीजें हमने कवर कर ली। अच्छा अब देखो यहां पर हाउ टू रन पाइथन इन डॉस मोड। हाउ टू रन पाइथन इन द डॉस मोड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा ये बनता है, क्वेश्चन पहले बना लें उसके बाद चलते हैं। क्वेश्चन ये बन रहा है, कैन वी यूज और execute Python without IDE, without IDLE? क्या हम बिना IDLE के पाइथन को रन और एग्जीक्यूट कर सकते हैं? Yes, yes, we can execute Python from DOS mode. हम लोग DOS मोड से भी पाइथन को रन कर सकते हैं। हाउ? स्टेप नंबर 1, गो टू कमांड प्रॉम्प्ट बाय टाइपिंग cmd in run। ठीक है, स्टेप नंबर 1, cmd टाइप करा रन में, डॉस में आ गया, डॉस में आ गया। यहां आ गया, ठीक है। अब अगर हम कोई पाइथन की कमांड देते हैं, हेलो, तो क्या ये रन होगी या नहीं होगी? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। मुझे बीच बीच में तुम लोगों की इंटेलिजेंसी भी चेक करनी होती है ना, इसलिए पूछते रहते हैं क्वेश्चन। क्या ये कमांड रन होगी पाइथन की या नहीं होगी? Adnan is saying no sir, Mehak is saying yes sir. Aman is saying no sir. ठीक है, 1 सेकेंड। पाइथन की कमांड्स, पाइथन के स्टेटमेंट कहां रन होते हैं? सर पाइथन के स्टेटमेंट पाइथन में रन होंगे? क्या हम पाइथन में हैं इस टाइम? सर हम पाइथन में नहीं है, डॉस में है। हम पाइथन में नहीं है, हम डॉस में है। तो हाउ टू इंटर इनटू द पाइथन फ्रॉम द डॉस मोड? पहले हम पाइथन में तो आए हैं। अगर हम यहां दे देंगे हेलो हाउ आर यू, देन इट विल इमीडिएटली शो द एरर अनएबल टू इनिशियलाइज द डिवाइस PRN। उसने अपने हिसाब से कुछ दे दिया, उस टाइम कौन बैठ गया आके? ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले पाइथन में इंटर होना है। तो हाउ टू इंटर इनटू द पाइथन फ्रॉम डॉस मोड? प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी, जस्ट टाइप पाइथन एंड प्रेस इंटर। नाउ यू आर इन पाइथन। अब आप इस टाइम पाइथन के इंटरैक्टिव मोड में हैं फ्रॉम डॉस। Can you please confirm? Now you are in Python interactive mode from the DOS. Can you please confirm? हर्षिता वेरी गुड। अब यहां पर आप पाइथन की कोई भी कमांड रन कर लीजिए जो आपको आती हो। Happily the output will come. No problem. ये सब पाइथन चल रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड, सब कुछ रन हो रहा है, जो जैसा वहां पे था वैसे ही यहाँ पे आ गया। ठीक है सर, इससे बाहर कैसे आएंगे? इससे बाहर कैसे आएंगे? कंट्रोल Z, बाहर आ गए, कंट्रोल Z।
कंट्रोल Z, ठीक है। अच्छा सर मान लीजिए हम डी ड्राइव में हुए, हम डी ड्राइव में, पहले हम सी ड्राइव में थे, अब हम डी ड्राइव में, पहले हम सी ड्राइव में थे, अब हम डी ड्राइव में, हम यहां से हम पाइथन में जाना चाहते हैं, यहां से हम पाइथन में जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, पाइथन टाइप करो, स्पेलिंग सही, आ गए पाइथन में, आ गए पाइथन में। सर सी से भी पाइथन में चले जा रहे हैं, डी से भी पाइथन में चले जा रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल सर, हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ वेरी गुड मरियम, पाथ कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी लेक्चर आप मिस कर देंगे, अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। आप लोगों ने सोचा लास्ट क्लास हमारी इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी? लास्ट क्लास वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो क्लास, पाथ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है पाथ कॉन्फ़िगरेशन, नॉट इवन सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, किसी भी ड्राइव से आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेट मी क्लियर ऑल दिस। मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग बेस देकर प्रोग्रामिंग में लाऊंगा कि सब कुछ आप याद रहे, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आ गए हम। सर और कोई तरीका है पाइथन में जाने का? सर पाइथन लिखना बहुत बड़ा पड़ रहा है, पी वाई लिख दीजिए तब भी आ जाएंगे आप। पी वाई इज द शॉर्टकट ऑफ पाइथन, शॉर्टकट ऑफ पाइथन, अंडरस्टैंड? तो आपने क्या देखा कि वी कैन एग्जीक्यूट आवर पाइथन स्टेटमेंट्स in the ideally we can also execute our Python statement from the DOS mode to entering into the Python, okay clear, no problem, understand? एजेंडा एक बार देख लेते हैं, ठीक। हाँ अब हम, अच्छा anybody have any problem? let me take a small revision, okay? नहीं सी में नहीं जा सकते। क्या पूछा क्वेश्चन? नहीं उसका प्रोसीजर नहीं है, उसके लिए आपको आईडीई चाहिए ही है, मतलब प्रोग्राम लिखने के लिए यू नीड एन एडिटर, देखो एक चीज और बता दें आपको, एक चीज और बता दें आपको, सी एक चीज और बता दें, 1 मिनट, उसमें नहीं आप कर सकते हैं, कंट्रोल Z करके वापस आ जाते हैं, वापस आ गए, ठीक है। अब आप डॉस में हैं, अब आप पाइथन में नहीं हैं। जब आप ट्रिपल ग्रेटर साइन देते हैं तो आप होते हैं किसमें? पाइथन में। जब आपका ट्रिपल ग्रेटर देन साइन नहीं होगा तो इसका मतलब आप पाइथन में। एक मिनट बताइए, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल इंटेलिजेंट आप रहें, बिल्कुल इंटेलिजेंट। हम कहां पर हैं सर? हम पाइथन में तो हैं, लेकिन पाइथन के इंटरैक्टिव मोड में हैं, जिसमें हम कमांड्स टेस्ट कर सकते हैं, स्टेटमेंट टेस्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं, बट प्रोग्राम नहीं लिख सकते, हम इंटरैक्टिव मोड में हैं। सर इंटरैक्टिव मोड का आइडेंटिफिकेशन क्या है? ट्रिपल ग्रेटर देन साइन, कॉपी पे लिखना है, ट्रिपल ग्रेटर देन साइन इज इंटरैक्टिव मोड आइडेंटिफिकेशन। ओके अब देखो यहां पर एक चीज और बता दें, वेयर इज माय थ्योरेटिकल, दिस इज माय थ्योरेटिकल, ओके। सब चीजें हमने बराबर सेट कर रखी हैं, ध्यान से रखो। अगर तुमको एक प्रिंटफ टेस्ट करना है, अगर एक प्रिंटफ टेस्ट करना है, मैं सी की बात कर रहा हूं या जावा की बात कर रहा हूं या C++ की बात कर रहा हूं या आपको बात करनी है C#, अगर आपको सिर्फ एक प्रिंटफ टेस्ट करना है तो आपको पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, यानी हेडर फाइल वाइड मेन, देन यू कैन टेस्ट, राइट। बट यहां पर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, कोई भी कमांड, कोई भी फंक्शन, कोई भी मॉड्यूल आपको टेस्ट करना है, देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ कंप्लीट प्रोग्राम स्ट्रक्चर। आप इंटरैक्टिव मोड में जाके टेस्ट कर सकते हैं, ऑल राइट, होप यू अंडरस्टैंड। You can go in the interactive mode and test. Up to this, anybody have any problem? हम कह रहे हैं कि अगर आपको printf टेस्ट करना है तो उसके लिए हेडर फाइल वाइड मेन, देन आपको टेस्ट करना है C लैंग्वेज में।
लेकिन अगर आपको कोई कमांड टेस्ट करनी है पाइथन में तो आपको पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, आप सीधे इंटरैक्टिव मोड में जाइए, वहां पर आप टेस्ट कर लीजिए। आर यू गेटिंग? ठीक है। अब क्या क्या चीजें हमने देखी? बिल्ट इन मेथड्स देखे। नंबर 2, आइडियली इंटरैक्टिव मोड देखा हमने। हाउ टू रन पाइथन फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। वो तो हम लोगों ने कल देखा था। पाथ कॉन्फ़िग देखा, डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन। ओके, अब आप बताइए, मैं 2 मिनट, मैं कोई बात नहीं, वो मैं कवर करा लूंगा, जो टॉपिक हमारा शेड्यूल है वो 15 मिनट में कवर हो जाएगा, लेकिन बीच में रुकना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम बहुत स्पीड में चलते जाएं और स्टूडेंट हेजिटेशन में कुछ पूछना चाहें ना पूछ पाए। इसलिए मैंने आपको, आई हैव स्टॉप माई सेल्फ। अभी आपको कुछ भी पूछना हो, अभी तक जितना हुआ तो आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट में डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं? ठीक है, कौन सी डायरेक्टरी आपको चेंज करनी है, कहाँ पे है? देखिए, अभी तो हमने डायरेक्टरी चेंज नहीं करी थी, अभी हमने ड्राइव चेंज की थी, अभी हमने ड्राइव चेंज की थी, डायरेक्टरी नहीं चेंज की। आप सी में हैं, ठीक है। आप डी में जाना चाहते हैं तो डी लिखिए, कोलन लिखिए, जैसे ही आप इंटर करेंगे आप डी में आ गए। आप यहाँ ई लिखिए, कोलन लिखिए, आप ई में आ जाएंगे। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब मुझे बताओ कि ई ड्राइव से रितेश कुमार नहीं, अभी इट्स वेरी गुड कि सो मेनी स्टूडेंट्स आर, ठीक है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, सोमेश, प्रीति एंड सोमेश, प्रीति, कल्पना, शाश्वत, श्रुति, प्रेरणा सिंह, इन लोगों से हमारे क्वेश्चंस हैं। हाउ टू इंटर इनटू द पाइथन फ्रॉम ई ड्राइव एंड हाउ टू एग्जिट। ई ड्राइव से पाइथन में कैसे जाएंगे और वहां से कैसे एग्जिट करेंगे? यस यस यस, तुम्हारी बात ही तो सुन रहे हैं हम, बोलो, टेल मी। गिव अप कर गया? अच्छा, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। देखो, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं या कोई भी हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख रहे हैं, अगर तुम टाइप भी करते हो तो मेरा सीधा ध्यान उसी पे जाता है, मेरा सीधा ध्यान उसी पे जाता है कि मैं तुम्हारी क्वेरी को पहले रिप्लाई कर लूं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करूं। तो चैट में मैं देखता रहता हूं कि कौन स्टूडेंट क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। हमें पढ़ाना नहीं है, सिर्फ तुम्हारे साथ एक टीम बनाकर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे चलना है। देख रहे हो, बिल्कुल हम बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहे हैं। वेरी गुड, प्रेरणा ने रिप्लाई कर दिया है कि कैसे इंटर होते हैं और कैसे हम लोग एग्जिट होते हैं। वेरी गुड, श्रुति ने भी रिप्लाई कर दिया। अब बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप मेथड एंड आईडी मेथड।
देखो हम सबको तो नहीं ले सकते कॉन्वर्सेशन में, तो स्पेशली हमने कुछ लोगों के नाम मेंशन कर दिए हैं। बोथ द प्रेरणा विल बी इन्वॉल्व इन द कॉन्वर्सेशन, ठीक है? और बताइए। हाँ गुड, एड्रेस ऑफ मेमोरी, एड्रेस ऑफ अ वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू एंड फॉल्स? ये क्या है? ये क्या है? These are boolean, these are boolean literals। तो इनको पाइथन में ऐसे लिखा जाता है, TR ट्रू एंड फॉल्स, और इनकी जो वैल्यू सेट की गई है वो भी बता देता हूं। ट्रू को 1 सेट किया गया है, फॉल्स को 0 सेट किया गया है। सर कैन यू प्लीज प्रूव इट? यस, आई कैन प्रूव इट। इंटरनली इनकी कुछ इंटीजर वैल्यू भी सेट की गई है। अभी क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है? एक कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है क्वेश्चन, मैं बताता हूं। सी, एक बार हम फ्रेश स्क्रीन ले लेते हैं। आई थिंक वी हैव टेकन द प्रिंट स्क्रीन। ये ग्रुप है क्या? कौन सा ग्रुप है यार? ये ग्रुप है, ये है ना ग्रुप? ओके ओके, थैंक यू। पेस्ट इट। ओके, अब देखो, ध्यान से देखना। हाँ कर दिया। अब पूछ रहे थे तो किसी ने बताया नहीं। अच्छा रुको, फॉल्स, कोई बात नहीं। फॉल्स ट्रू, कैन यू प्लीज टेल मी? सॉरी, इसका एक what will be the answer of this? All the true will be considered as 1, so 1 plus 1 plus 1 3, and all the false will be considered as 0, so 3 plus 0 is 3. Can you please confirm? तो इसका मतलब ये है कि सर जितनी भी ट्रू वैल्यूज होती हैं वो ट्रू 1 होती हैं, और जितनी भी फॉल्स वैल्यूज होती हैं वो 0 होती हैं। ठीक, अच्छा, अब हम लोग, टाइम है हमारे पास 47, कोई दिक्कत तो नहीं, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और ले सकते हैं, ठीक है? मैथ का टॉपिक अभी हम ले लें एक, ठीक, छोटा टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है। सी, इसे हम कल रिवाइज भी करवाएंगे, ठीक है? ऑल मैथ फंक्शन कम्स अंडर math.h header file in C language. Correct? So first of all, we have to include math.h. Then we can use any function of math header file. ये स्टेटमेंट सी के हिसाब से सही है या गलत है? आराम से देखिए और पढ़िए, सही है ना? Now what about Python? All math function comes under math module. So we have to import math module, then we can use math function. जिस चीज को हम सी लैंग्वेज में हेडर फाइल कह रहे थे, उसी चीज को हम पाइथन में मॉड्यूल कहते हैं, उसी चीज को हम जावा में पैकेज कहते हैं।
तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम होते हैं। सी शार्प में उसको नेम स्पेस कहा जाता है, सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में उसको हेडर फाइल कहा जाता है, पाइथन में उसे मॉड्यूल कहा जाता है, जावा में उसे पैकेज कहा जाता है। अंडरस्टैंड? ठीक। तो स्टेप नंबर 1, अच्छा सर अगर हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, SQRT एक फंक्शन है और GCD एक फंक्शन है। वन मिनट प्लीज। ओके, GCD फैक्टोरियल, POW, ये सारे फंक्शन आपके मैथ मॉड्यूल में होते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स, और भी हैं, इनको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में हमें मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, ठीक है, देन वी कैन यूज दिस फंक्शंस। तो जस्ट आई वांट टू स्टार्ट, इसको आप क्लोज कर देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर ऑन कर लेंगे, बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फ्रेश स्क्रीन ले लेते हैं, क्योंकि बहुत नीचे अगर हम लिखेंगे तो मे बी कुछ विजिबिलिटी इश्यूज आ जाएं। आराम से देखते हैं, बस हार्डली स्मॉल टॉपिक। ठीक, हमने लिखा math.sqrt, बहुत देर से एरर नहीं आई थी तो हमने कहा एरर भी लाएं। सर हाउ कैन यू यूज द SQRT फंक्शन? हाँ, एरर आ गया, तुम आ गए हो यहाँ पे, मतलब अच्छा, ठीक, अच्छा दिव्यांश, कोई बात नहीं, आप रहो बैच में रहो, ठीक है, ओके, ठीक है। अब क्या है कि दिस math.sqrt is not working. Why it is not working? Because आपने मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया। सर हाउ टू इंपोर्ट मैथ? अब कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब आप यूज करिए math.sqrt 144, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? सर हम आपने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं यूज किया, इंटरैक्टिव मोड में प्रिंट ऑप्शनल है। आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये भी लिखो, इंटरैक्टिव मोड में अगर आप प्रिंट नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा सर, चल जाएगा। हाँ, n इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये n में स्टोर है, खाली n दे दो तब भी प्रिंट हो जाएगा, और अगर प्रिंट n देते हो तो भी प्रिंट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? math.sqrt 169 13.0, करेक्ट। math.factorial, पूरा फैक्टोरियल फंक्शन अवेलेबल है पाइथन में, ओनली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच फैक्टोरियल फंक्शन इज अवेलेबल। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120। कितना निकाला हम लोगों ने सी लैंग्वेज में? स्मार्ट प्रोग्रामिंग। ऐसा नहीं कि हम डेवलप नहीं कर सकते, लॉजिक से हम डेवलप कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा, नंबर ऑफ कोड ज्यादा होंगे, बनाने में टाइम लगेगा। बना बनाया फंक्शन है, वी कैन यूज इट। कितने लोग ऐसे हैं जो GCD के बारे में जानते हैं? 4,8 का GCD कितना होगा?
4 होगा, मालूम है ना। बस आई एम लीविंग, अटेंडेंस के लिए तैयार हो जाइए। ये लेक्चर हम कल इसको रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। और आपको सारा काम अटेंडेंस बहुत अच्छे से बोलना। हम ये भी देख लें काशिफ का रोल नंबर कौन सा है, अभी इसको हाईलाइट करेंगे।